Hello all. I welcome you all on behalf of Vidigya, your best pal for CLAT preparations. Here at Vidigya, we have come up with this unique initiative wherein we'll be doing a 360-degree analysis of all those topics which are relevant and important as far as CLAT 2021 exam is concerned. So today, our topic for the discussion is Iran nuclear deal. Yes, Iran nuclear deal. It was recently in news as well, and we will see why this particular agreement or deal was in news recently, and we also have a look at the backdated story at the time when it was signed in the year 2015 by then President of US, that is Barack Obama. तो उसके बारे में पूरा अपन समझने वाले हैं कि इसमें क्या हुआ था. But before that, we'll just have a look at the relevance of this topic with respect to CLAT 2020 actual exam paper. So if I talk about the actual CLAT 2020 exam paper, in the GS section, there were total 36 passages, 36 questions out of 7 passages. So the first passage was talking about the economic package which was announced by our honorable prime minister of 20 lakh crore. The second passage was talking about the banking kind of banking, more related to banking and OMO, open market operations, and FDI inflows, right? The third passage in particular was talking about Rafale, right? The deal between India and France for the fighter jets. The fourth passage was talking about India-Nepal relations. The fifth passage was talking about New Education Policy 2020, NEP. The sixth passage was talking about SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. And the last seventh passage was talking about US-Israel-Palestine deal. So that's what this thing I had already told in my previous sessions, and out of 4 passages had a direct and indirect relation with respect to India in terms of international news and international relations. So this topic does not have a direct relation to India, though we have a good relation with both United States and Iran as well, and even the neighboring countries of Iran, that is Saudi Arabia and Israel as well. But India does not have a direct involvement in this particular issue. But if I talk about 7th passage, US-Israel Palestine deal, तो in the actual CLAT 2020 एग्जाम पेपर वहां पे भी इंडिया को ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं था अगर अपन देखें, बट एग्जाम में था क्वेश्चन. तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन कंप्राइज ऑफ कुछ ना कुछ इंडिया का रिलेशन. So in the same way, Iran nuclear deal does not have a direct or indirect relation as far as India is concerned, but still this topic holds relevance as far as CLAT 2021 exam is concerned. So I'll just tell you the flow of content, that how we are going to go ahead with this particular topic. Initially, we'll just have a look at why this particular thing was in news. Then we'll have a look at the agreement, actual Iran nuclear agreement. Then we'll have a look at this particular deal was successful or not. Then we'll have a look at what are the sanctions or the reliefs that has been given to Iran with respect to that. Then we'll have a look at Trump's effect in the 2018 कि तब के जो प्रेसिडेंट थे, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया था, वो इस डील से वापस आ गए थे, उसका क्या, उसके बारे में भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे. देन वी विल हैव ए लुक एट कि द रिपरकशंस ऑफ इट, कि जैसे ही यूएस उससे बाहर आ गया तो ईरान ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कहीं ना कहीं यूरेनियम के रिजर्व्स बढ़ाना, वो सब देन वी विल हैव ए लुक एट. तो इस तरीके से अपन को इस पूरे टॉपिक का काफी अच्छे से एक ओवरव्यू पता चल जाएगा और काफी अच्छे समझ आ जाएगा. और आई एम टेलिंग यू दिस टॉपिक इज an important topic as far as CLAT 2021 is concerned, and the same has been followed by a quiz as well. So we'll do the quiz as well. Okay. So without any further ado, we are ready to begin. A quote: "Ships in harbor are safe, but that's not what ships are built for." So let's begin. So recently it was in news because the Honorable US President Joe Biden has said that United States will return to the JCPOA. JCPOA, you can see Iran nuclear deal is formally known as JCPOA. The full form of JCPOA, most of you might be knowing it, Joint Comprehensive Plan of Action. I'm repeating it again, Joint Comprehensive Plan of Action. So what had happened? President Joe Biden has said that the United States will return to Iran nuclear deal, or which is formally known as JCPOA. And as per him, diplomacy is the best way to restrict Iran
to become a nuclear power or to acquire nuclear weapons. डिप्लोमेसी इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। आई बात समझ में? अभी ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था? हालांकि एग्रीमेंट पुराना है 2015 का, बट देन प्रेसिडेंट बराक ओबामा द्वारा ये साइन किया गया था। उसके बाद 2018 में यूएस इससे बैकआउट कर गया था इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से। उसके क्या रीजंस है दैट विल स्टडी इन द फर्दर स्लाइड्स। फिर अभी जो जनवरी 2021 में नए प्रेसिडेंट आए दैट इज जो बाइडेन, उन्होंने ये कहा कि अपन इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में मतलब यूएस जो है वापस आ सकता है और डिप्लोमेसी ही एक अच्छा ऐसा एक जरिया हो सकता है कहीं ना कहीं ईरान को रोकने का न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से। क्लियर है? नाउ वी विल हैव ए लुक एट ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, राइट? सो व्हाट इज ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट? वो अपन समझ गए दोनों कंट्रीज की कौन कौन सी कंट्रीज के बारे में आपस में समझौता हुआ, दैट विल स्टडी। कब हुआ? जुलाई 2015 में। और क्या हुआ अंडर इट्स टर्म्स? जैसे मैंने आपको बोला था, ये इसकी फुल फॉर्म भी लिखी JCPOA की, यू कैन राइट इट डाउन फ्रॉम हियर एज वेल। इज ए लैंडमार्क अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। यस, अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो क्या हुआ? एक लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में? ईरान के बीच में और सेवरल अदर वर्ल्ड पावर्स। वर्ल्ड पावर्स कौन कौन सी? दैट विल सी। कब हुआ? जुलाई 2015 में। और उसमें क्या था ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट में? दैट ईरान एग्रीड टू डिसमेंटल मच ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। इस समय अगर ये न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होता तो कुछ ही समय में ईरान ने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन में काम ऑलरेडी उसका चल रहा था, और 2 से 3 महीने विद इन 3 to 4 मंथ्स आई थिंक ईरान बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन बना लेता। बट ये बिल्कुल सही समय में हुआ। इसी वजह से देन प्रेसिडेंट बराक ओबामा के हिसाब से, जो उनका 8 साल का कार्यकाल था, यूएस में 4 साल की प्रेसिडेंटशिप होती है एक टर्म की अगर मैं बात करूं, जो इंडिया में 5 साल की होती है। तो जो उनका सेकंड टर्म था, तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि ओवरऑल अगर मेरे 8 साल का कार्यकाल देखे तो मेरा सबसे बड़ा जो डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है दैट इज दिस ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट। सो आप समझ सकते कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये पर्टिकुलर टॉपिक, और कितना इंपॉर्टेंस रखता है एज फार एज वर्ल्ड इज कंसर्न, ओवरऑल अगर मैं सिनेरियो देखे। क्लियर? और इसके बदले में अब एक चीज समझिए कि ईरान ने अग्री तो किया कि यस आई एम रेडी टू साइन एन एग्रीमेंट विद ऑल द वर्ल्ड पावर्स। तो ईरान को इसके बदले में क्या मिला? कोई पैसा वगैरह नहीं मिला, बट कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे थे उससे उसको छुटकारा मिला। कोई ऐसा नहीं कि उसको इतना रिलीफ दे दिया, इतना पैसा दे दिया, नहीं। जो क्योंकि एक चीज अपन को समझनी पड़ेगी, ये जो साउथ ईस्ट ये मिडल ईस्ट कंट्रीज है जैसे सऊदी वगैरह और ईरान एज फार एज आई से, तो इन सब का जो मेजर डिपेंडेंसी है या मेजर सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज ऑयल एक्सपोर्ट ओनली। और अगर उनके ऊपर वहीं पे सैंक्शंस लगा दिए तो कहीं ना कहीं उनके पास पैसा तो आएगा ही नहीं, और पैसा नहीं आएगा तो इकोनॉमी नहीं चल पाएगी, काफी इश्यूज होंगे। तो कहीं ना कहीं ईरान भी इस एग्रीमेंट में इसलिए आया ताकि यूएस ने उसके ऊपर जो इतने समय से सैंक्शंस लगा रखे थे वो कहीं ना कहीं उससे रिलीफ उनको ईरान को पर्टिकुलर मिल जाए। अब अपन समझते हैं कि इस एग्रीमेंट में कौन कौन था। इस एग्रीमेंट में थी P5+1 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन, और इसके अलावा ईरान तो था ही, राइट? तो P5 में कौन कौन आ गया? P5 में यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, चाइना, फ्रांस और रशिया, और +1 मींस जर्मनी। तो ये 6 कंट्रीज और साथ में ईयू यूरोपियन यूनियन को भी इन्होंने साथ में ले लिया था। क्लियर है? और किसके बीच में साइन हुआ? ये सब वर्ल्ड पावर्स के बीच में और ईरान के बीच में। कब? 2015 में, विच केम इनटू इफेक्ट इन जनवरी 2016। क्लियर है? ये पूरा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल जो अपन ने 5 मेंबर्स P5+1 पढ़ा, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या हुआ? इनके जो 2 पड़ोसी देश है, कौन कौन? ईरान के 2 पड़ोसी देश दैट इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का ये था कि ये पर्टिकुलर आपने एग्रीमेंट किया, बट आपको एटलीस्ट हमको एक बार बताना चाहिए था। उनका ऐसा कहना था कि हमको लूप में लेके ये पर्टिकुलर आपको एग्रीमेंट करना चाहिए था। और इजराइल जो उनका पड़ोसी देश है ईरान का, उसका ऐसा कहना था कि जो एग्रीमेंट है दैट इज वेरी लीनियंट, कहीं ना कहीं और स्ट्रिक्ट और हार्श होना चाहिए। तो दोनों कंट्रीज जो पड़ोसी देश है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अपने सुझाव दिए, अपने अपने जो अपना जो क्लेम था कि ये, जैसे सऊदी ने कहा कि हमको कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए था, अकाउंट में लिया जाना चाहिए था कि ये डील हो रही है, तो बिकॉज वी आर ए नेबरिंग कंट्री, तो कहीं ना कहीं हमको भी वी हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और इजराइल का कहना था कि जो एग्रीमेंट है दैट इज वेरी लीनियंट। क्लियर है?
नाउ वील हैव ए लुक एट पर्पस ऑफ द डील कि अपन ने यूएस ने और दोनों कंट्रीज ने, ये जो वर्ल्ड पावर से इन्होंने एग्रीमेंट साइन क्यों किया, क्या पर्पस क्या था। मेजर पर्पस ये था कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना दिया जाए, और एक बार अगर उनके ऊपर ऐसा मतलब एग्रीमेंट हो गया तो अगर, और बीच बीच में क्या होता है, इन्होंने आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, तो वो क्या करेगा, हर क्वार्टरली मतलब इंस्पेक्शन में जाएगा, चीजें समझेगा, तो कहीं ना कहीं अगर ये एग्रीमेंट होगा तो इनको अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स बना भी रहे तो साल भर का समय लगेगा, राइट। लेकिन वही अगर ये कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो ये 3 महीने या कुछ महीनों में ही क्या कर लेंगे, 2 से 3 महीनों में ही न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स बना देंगे। तो ये पर्पस था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करना ताकि दूसरी कंट्रीज को भी समय मिल सके। क्लियर है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने बोला कि ये सिग्नल्ड विलिंगनेस टू ऑब्टेन न्यूक्लियर इफ ईरान सक्सेसफुली डिटोनेट्स वन, राइट, कि ईरान अगर करेगा तो हम भी करेंगे, राइट। तो उस सबको रोकने के लिए, सऊदी को भी रोकने के लिए एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी था। दैट वाज द नीड ऑफ द आर एट दैट टाइम इन द ईयर 2015। इट वाज काफी समय से था, बट वो कहीं ना कहीं उस पर सफलता नहीं मिल पा रही थी, बट 2015 में इवेंचुअली दैट डील वाज साइंड। ये इंपॉर्टेंट है। ईरान हैड प्रीवियसली एग्रीड टू फॉरगो द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एज ए सिग्नेटरी टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। पहले जो ईरान था आज, वो एनपीटी जो है, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसमें था। तो उसके अंतर्गत उसने बोल दिया था कि नहीं, विल फॉलो, और हम कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। बट जब वहां पे रूल चेंज हुआ 1979 में, तो कहीं ना कहीं अगेन दे स्टार्टेड मेकिंग वेपन्स थ्रू यूरेनियम, न्यूक्लियर वेपन्स। वॉज डील सक्सेसफुल, इसके बारे में समझते हैं कि डील तो हो गई, बट क्या सक्सेसफुल थी, या डील में क्या क्या था, उसके बारे में अपन विल हैव जस्ट हैव ए लुक एट इट। तो काफी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था कि ये जो पर्टिकुलर डील है, अगर सारी पार्टीज बिल्कुल सही चले, सहमत रहे, और जो अग्रीमेंट है उसके अनुसार चले, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एटलीस्ट ए डिकेड, मतलब 10 साल तक तो कोई समस्या का काम ही नहीं है। क्लियर। बट ये जो आपस में एग्रीमेंट हुआ, अब देखिए कभी भी कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है तो इट कैन नॉट बी वन साइडेड, बिकॉज दूसरी पार्टी का भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, ईरान को बोला कि हाँ न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने, बट कुछ कुछ तरह से उनको एग्जेम्पशन दिए, कैसे कि 10 साल बाद आप ये पर्टिकुलर चीज बना सकते हो, 15 साल बाद आप ये बना सकते हो, 20 साल आप बाद, मतलब कंडीशंस डाल दी। तो कहीं ना कहीं अगर अपन समझे तो उन्होंने टाइम ही बार्गेन किया। 10 साल कभी ना कभी तो खत्म होंगे, 15 साल कभी ना कभी तो खत्म होंगे। इसी वजह से कहीं ना कहीं ट्रंप ने इससे बैकआउट कर लिया, या इसराइल भी बोलता था कि पॉलिसीज बहुत, ये एग्रीमेंट है जो बहुत लीनियंट है। क्लियर है। दैट विल स्टडी, ये देखिए जो मैंने आपको बताया 10 ईयर्स वाला, 15 ईयर्स वाला, ये अलग अलग, कि इसमें ये पर्टिकुलर आप मिसाइल नहीं बना सकते, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना सकते, वो सब चीजें दैट विल स्टडी। और सम ऑफ द डील्स अपोनेंट फॉल्टेड सनसेट प्रोविजन। सनसेट प्रोविजन बेसिकली क्या हो गया कि हाँ, अभी दिन है, अभी बढ़िया है, 10 साल का समय है, टाइम बार्गेन कर लिया, अच्छा चल रहा है, बट जैसे ये टाइम पीरियड खत्म होगा, या ये जब सनसेट का मतलब जब रात होगी, देन दिक्कत है। रात होने का मतलब उसका कहीं ना कहीं आप उसको रेजोनेट कर सकते हैं कि जब ये 10 साल या 15 साल या 20 साल का जो टाइम पीरियड है वो खत्म होगा, उसके बाद क्या, व्हाट टेक्स्ट। तो वो एक बड़ा इशू था। और ईरान ने भी बिल्कुल इस पे एग्रीमेंट पे बिल्कुल फॉलो किया 2015-2015 से, नॉट टू प्रोड्यूस इधर द हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। यूरेनियम बहुत बड़ा सोर्स होता है, अगर किसी को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, तो यूरेनियम भी दो तरीके का होता है, लो एनरिच्ड और हाई एनरिच्ड। तो जो लो एनरिच्ड होता है वो कहीं ना कहीं वापस कन्वर्ट करके हाई एनरिच्ड में बनाया जाता है, और जो हाई एनरिच्ड होता है वो न्यूक्लियर वेपन्स में काम में आता है। दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट था स्लाइड में, तो वी विल हैव जस्ट डिस्कस्ड। तो अभी इसमें अपन ने क्या समझा कि डील सक्सेसफुल थी या नहीं थी, उसके बारे में अपन ने समझा, उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर उसको एक बार सम अप कर लेंगे, वॉज डील सक्सेसफुल। तो द अकॉर्ड जैसे मैंने आपको बताया, एग्रीमेंट लिमिट्स द नंबर एंड टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज ईरान कैन ऑपरेट। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 10 साल में ये, 15 साल में ये, 20 साल में ये, अभी अगर आप कर रहे हो तो इतना ही परसेंटेज, 3.63 या 3.53% ऑफ यूरेनियम। तो एक लिमिट कर दी थी, बिल्कुल ये नहीं बोला कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, कुछ कुछ कर सकते हो, बट बिल्कुल भी उनके ऊपर 100% सैंक्शंस नहीं लगाए। फिर आईएईए, जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया था, ये अपनी इंस्पेक्टर्स, ये अपनी टीम भेज सकता है और वहां देख सकता है कि वेदर ईरान इज फॉलोइंग द पर्टिकुलर एग्रीमेंट और इज अबाइड बाय द
rules and regulation that have been mentioned in the agreement or not, right? Or IAEA will issue a quarterly report as well to its governors and board of directors, जो उसमें concerned authorities है of all the five P5+1 nation and European Union, कि ईरान उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं चोरी छुपे न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। तो उन सब के बारे में आपस में ये एग्रीमेंट हुआ और कहीं ना कहीं ये डील सक्सेसफुल थी अगर देखा जाए तो, बिकॉज ईरान फॉलो कर रहा था। बट इसके बाद में रिपरकशंस क्या रहे वो अपन समझते हैं कि ट्रंप ने 2018 में क्या किया। नेक्स्ट स्लाइड में अपन ये समझते हैं कि ईरान ने एग्रीमेंट साइन किया तो ईरान को क्या फायदा हुआ। ईरान को सबसे बड़ा फायदा, जैसे मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल, कि ये जो गल्फ कंट्रीज है, मिडल ईस्ट कंट्रीज, इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम और दे रिलाई होल हार्टेडली ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल ओनली। तो कहीं ना कहीं जो उनके उनके ऊपर सैंक्शंस थे वो हटा दिए गए थे ईरान के ऊपर से यूएस द्वारा। बट ऐसा नहीं सारे सैंक्शन हटा दिए, कुछ सैंक्शन हटा दिए गए थे। दे कवर मैटर्स सच एज the EU, United Nations, US all committed to lifting their nuclear related sanctions. However, many other US sanctions on Iran, some dating back to hostage has remained in effect. जैसे मैंने आपको बताया सारे के सारे जो sanctions थे वो नहीं हटाए गए थे, कुछ कुछ sanctions even after this particular agreement वो भी थे, और that was duly accepted by Iran as well. जैसे जो मतलब sanctions थे, जैसे ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, सपोर्ट फॉर टेररिस्ट ग्रुप, ह्यूमन राइट अब्यूज, वो सब, राइट। फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में भी कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया गया था, तो वो सब भी था। तो ये रिलीफ उसको ईरान को मिला था। सो दैट्स व्हाई दे हैव कम इनटू अकाउंट कि हाँ यार दिस इज अ गुड डील, और अपन न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं बनाते और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाते, और इस एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं अगर अपन आ जाएंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री एंड इट्स इकोनॉमी एज वेल। ओवरऑल कंट्री को ही कहीं ना कहीं फायदा होगा। अब बात करते हैं ट्रंप इफेक्ट। 2018 में क्या हुआ, ट्रंप देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ऐसा साइड किया कि ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है काफी मतलब लीनियंट इन द सेंस कि इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स जो बहुत घातक बहुत आक्रामक होती है उनका कोई जिक्र ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या कर लिया, और भी कुछ रीजन साइड करके उन्होंने इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से यूएस को बैकआउट करा दिया कि हम इसमें नहीं है, राइट। जैसा मैंने बोला, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विड्रू द यूनाइटेड स्टेट्स, सभी को नहीं, दूसरी पार्ट्स थी ऑलरेडी क्योंकि एग्रीमेंट में और भी कंट्रीज थे, P5+1 नेशंस, इन द ईयर 2018 एंड रीइंस्टेटेड डिवास्टेटिंग बैंकिंग एंड ऑयल सैंक्शंस। 2015, जब उसके पहले अगर ईरान की बात करें काफी सैंक्शंस थे। 2015 से 18 जब अच्छे से सब चीज चल रही थी, एग्रीमेंट हो गया था 2015 में, और उसके बाद ईरान फॉलो भी कर रहा था, IAEA भी जा जाके रिपोर्ट्स वगैरह ले रहा था, सब चीज प्रॉपर थी। तो और उस समय सैंक्शंस कुछ हटा दिए थे, ऑयल वगैरह मेजरली अगर अपन बात करते हैं एक्सपोर्ट का। बट जैसे ही ट्रंप देन प्रेसिडेंट उससे बाहर आए, उन्होंने वापस से सैंक्शंस लगा दिए और बहुत ज्यादा हार्ड हिट किया किसको, ईरान की इकोनॉमी को, बिकॉज जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल बताया। ट्रंप ने क्या रीजन साइड किया कि फेल टू एड्रेस ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, कि एग्रीमेंट में जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसकी तो बात ही नहीं है, राइट। एंड इट्स प्रॉक्सी वॉरफेयर इन द रीजन, एंड ही क्लेम दैट द सनसेट प्रोविजन, जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्योंकि जो टाइमलाइन वाला था कि 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स डाउन द लाइन टू परस्यू न्यूक्लियर वेपन्स इन द फ्यूचर, कि अभी नहीं कर रहे, 10 साल नहीं कर रहे, 10 साल तक अपन ने कुछ सैंक्शंस लगा दिए, सेंट्रीफ्यूजीज वगैरह, यूरेनियम कंटेंट 15 साल तक लगा दिए, बट उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो इसी वजह से ट्रंप ने बोला कि ये एग्रीमेंट जो है वो सही नहीं है, इसमें और कुछ एडिशंस होने चाहिए, और कहीं ना कहीं ट्रंप उससे बाहर आ गया, किससे, JCPOA से, दैट इज ईरान न्यूक्लियर डील और एग्रीमेंट। क्लियर है। लेकिन केवल यूएस बाहर आया था, दूसरी जो कंट्रीज थी वो फिर भी उन्होंने ईरान के साथ एग्रीमेंट जारी रखा, और कुछ ना कुछ जो सैंक्शंस थे जो अलाउ थे, और यूएस से बातचीत करके फ्रांस, जर्मनी और यूके ने क्या किया, एक लॉन्च किया बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, गुड्स के बदले गुड्स, तो जिसको इंस्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंस्टेक्स। क्लियर। तो विच फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शंस विद ईरान आउटसाइड ऑफ द यूएस बैंकिंग सिस्टम, कि ये तीनों कंट्रीज इंस्टेक्स के अंतर्गत बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड तो कर रहे थे, बट उन चीजों का ट्रेड कर रहे थे विच इज आउटसाइड ऑफ यूएस डोमेन, इफ आई से बैंकिंग एज फार। सो हाउएवर दिस सिस्टम इज ओनली meant for food and medicine, which are already exempted by US sanctions on Iran. फूड एंड मेडिसिन में डील कर रहे थे, और कहीं ना कहीं दे वर गेटिंग ऑयल फ्रॉम ईरान,
and they were exporting food and this medicine to Iran. These countries, three countries through Instex. आई थिंक क्लियर हुआ होगा. अभी तक अपन ने क्या समझा? 2015 में डील साइन हुई, अच्छे से चल रहा था, डील सक्सेसफुल थी. जो उसके एक्सपर्ट्स थे वो बोलते 10 साल तक भी अगर मतलब ऐसा था कि अगर सारी कंट्रीज जो जो इसमें इन्वॉल्व है अगर सब रूल्स फॉलो करती तो 10 साल तक भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फिर धीरे धीरे यूएस ने 2018 में बैकआउट किया और उसके रिपरकशंस क्या क्या हुए कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर रिलीफ्स वगैरह सैंक्शन वापस से लगा दिए. बट फिर भी इंस्टेक्स के थ्रू ये तीन कंट्रीज उससे बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड कर रही थी. क्लियर है? अभी का न्यूक्लियर स्टेटस देखते हैं. जैसे ही ईरान बाहर आ गया, सॉरी यूएस बाहर आ गया, तो ईरान ने फिर सोचा कि डील तो दो पार्टी के थ्रू हुई है, के बीच में हुई है. एक पार्टी ने बैकआउट किया. मैं तो मैंने जो बोला था कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाऊंगा, मैं तो उस पर कायम हूं. बट कहीं ना कहीं अब वापस से मेरे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, तो ईरान भी अपनी पे आ गया. अपनी पे आ गया इन द सेंस उसने स्टार्ट कर दिया वापस से जो यूरेनियम वगैरह रिजर्व्स है उसके बारे में और उसका एक्सट्रैक्शन, और बेसिकली कहने का तात्पर्य न्यूक्लियर वेपन्स बनाना वापस से उन्होंने स्टार्ट कर दिया. स्टॉक पाइल ऑफ लो एनरिच्ड यूरेनियम, जो मैंने आपको बताया, लो एनरिच्ड और हाई एनरिच्ड जो होता है. एंड हाँ, एक चीज और इन्होंने क्या किया, इट ऑल्सो बिगेन डेवलपिंग न्यू सेंट्रीफ्यूजेस टू एक्सेलरेट यूरेनियम एनरिचमेंट, रिज्यूमिंग हैवी वाटर प्रोडक्शन एट इट्स अरक फैसिलिटी, एनरिचिंग यूरेनियम एट फोर्दो. ये एक और सिटी है जहां पे इन्होंने क्या कर दिया, यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया. इसके पहले एक सिटी और थी, वहां पे ऑलरेडी हो रहा था, बट ये दिस वाज द सेकंड सिटी. क्लियर है? विच रेंडर द आइसोटोप प्रोड्यूस्ड देयर अनयूजेबल फॉर मेडिकल पर्पस. बेसिकली कहा जाए तो एक कंट्री बैकआउट किया, बट दूसरी कंट्री ने बोला कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया, बट स्टिल हमारे पास सैंक्शंस लगा दिए गए, तो अब तो अपन जो एग्रीमेंट है उससे बाहर एक तरह से है और अपन तो करेंगे, मतलब राइट. फिर इसमें और क्या अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुआ कि जून 2020 में क्या किया, ईरान टुक मोर फर्दर स्टेप अवे फ्रॉम इन इट्स न्यूक्लियर प्लेजेस. जनवरी 2020 में यूएस टारगेटेड किलिंग ऑफ टॉप ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी. यूएस ने क्या किया, कासिम सुलेमानी जो वहां के टॉप क्या थे, ईरानियन जनरल, ईरान के जनरल थे, उनको मार दिया. क्लियर? उसके बाद अभी बीच में और न्यूज में उसके बाद आया नवंबर में कि मोहसिन फखरेज़ादे, ये क्यों, कौन थे, ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनका भी असैसिनेशन हो गया, उनकी भी डेथ हो गई. कैसे हुई? ऐसा है कि इसराइल ने कुछ गाड़ी में मतलब बॉम्ब लगा के और कुछ रिमोट कंट्रोल से, मतलब कुल लगे जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनकी भी डेथ हो गई. तो कहीं ना कहीं ये भी एक अग्रेशन का रीजन था ईरान का कि हम अग्रीमेंट फॉलो कर रहे हैं, और अग्रीमेंट से तो यूएस बाहर आया फिर भी. और फिर जैसे ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया सब चीज कि वापस लो एनरिच यूरेनियम बनाना चालू कर दिया, फोर्दो में एक नया प्लांट वापस लाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या किया यूएस और इसराइल द्वारा उनके जो दो, एक टॉप कमांडर है, जनरल है, उनको, और एक टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, दोनों को मार दिया गया. तो इससे भी कहीं ना कहीं एग्रेशन क्रिएट हुआ. सैंक्शंस का इफेक्ट क्या हुआ? बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ. जैसा कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल, कि इनके लिए ऑयल ही ऐसी चीज है जिससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी सस्टेन कर सकती है. तो प्रायर टू जेसीपीओ के पहले, मतलब 2015 के पहले, ईरान इकोनॉमी सफर्ड ईयर्स ऑफ रिसेशन, करेंसी डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, सभी सारी प्रॉब्लम्स, बिकॉज यूएस ने सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, और सैंक्शंस लगा दिए तो काफी दिक्कतों का सामना ईरान कर रहा था. बट जैसे ही जेसीपीओ में आ गया, एग्रीमेंट में आ गया, और जैसे ही सैंक्शंस हटे तो कहीं ना कहीं ईरान को काफी फायदा हुआ, और ईरान स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ऑफ ऑयल. Iran began exporting more than 2.5 million barrels per day. You can see the quantum. 2.1 million barrels per day. ये यहां पे लिखा है. और जैसे ही उसके सैंक्शन, मतलब जेसीपीओ में जैसे ही ईरान आ गया, ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हो गया. फिर जैसे ही 2018 में ट्रंप इफेक्ट, ट्रंप ने क्या किया, वहां से इससे बैकआउट कर लिया, वापस से सैंक्शंस लगा दिए, तो एकदम से क्या हो गया, शार्प फॉल आ गया किसमें, ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स में. ये देखिए, oil and petroleum, the end of sanctions waiver on oil exports and the restoration of US sanctions in 2018 has once again cut deeply into a vital source of national revenue, because that is the main source of income for the country. Oil and petroleum products account for 80% of Iran's export, right? 80% of Iran's export. Or by mid 2020, oil export had plummeted to below 300,000 barrels per day.
जहां पे 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे था, वो क्या हो गया 0.3 मिलियन बैरल्स पर डे हो गया। अब देख सकते हैं कि अराउंड जो एक्चुअल में वो करते थे उसका, एक्चुअल जितना एक्सपोर्ट करते थे पर डे उसका आई थिंक काफी कम, मतलब एक तरह से एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आ गया जो एक्चुअल में पहले कर रहे थे और अभी जो कर रहे थे, राइट। फिर और रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, कुछ बैंक्स पे भी लगा दिए, फिर एमएनसीज जो वहां पे कर रही थी काम उनके ऊपर भी काफी मतलब हार्श रूल यूएस हैज स्टार्टेड प्रोक्लेमिंग। तो वो सब इश्यूज हो गए थे, ठीक है। अब अपन समझते हैं व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, बिकॉज 2015 अपने समझ लिया, 18 तक समझा, फिर ट्रम्प इफेक्ट समझा, फिर सैंक्शंस हटा दिए थे तो क्या था, सैंक्शंस लगे हुए थे तो क्या था, आई थिंक पूरा अपन समझ पाए। अब लास्ट इस पीपीटी में ये स्लाइड है, ये क्या कहना चाहती है व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, बिकॉज अभी रिसेंटली अपडेट क्या हुआ, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्या बोला कि यूएस किसमें जेसीपीओए में ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट में वापस से आ सकता है, बट उन्होंने भी कुछ कंडीशंस वगैरह डाली, दैट विल स्टडी। क्लियर है। बाइडेन हैज सेड दैट यूएस विल रीजॉइन द एग्रीमेंट, कर सकता है बिल्कुल, इफ ईरान रिटर्न्स टू इट्स कंप्लायंस, बिकॉज 2018 तक तो बिल्कुल कंप्लायंस था, कर रहा था ईरान, बट जैसे ही ट्रम्प देन यूएस प्रेसिडेंट उससे बैकआउट किए, तो ईरान भी फिर देन स्टार्टेड डूइंग व्हाट इट वाज डूइंग अर्लियर इफ प्रायर टू 2015, राइट। एंड ही आल्सो वांट्स टू नेगोशिएट अ सक्सेसर एग्रीमेंट, मतलब कहने का मतलब बाइडेन तैयार थे किसके लिए, एग्रीमेंट के लिए, बट बाइडेन ऐसा बोल रहे थे कि जो एग्रीमेंट होगा वो नया एग्रीमेंट बनना चाहिए, मतलब जो पुराना है 2015 वाला वो एग्रीमेंट नहीं बना, कुछ और एडिशन जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह की जो ट्रम्प बात कर रहे हैं 2018 में, उनको भी कहीं ना कहीं एडिशन या और कुछ, मतलब एक बेसिकली कहा जाए तो एक नया एग्रीमेंट बनना चाहिए, वो पुराना एग्रीमेंट पे वो राजी नहीं होंगे। बट ईरान ने ऐसा बोला, ईरान का क्लेम ये था कि हम तो कभी इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से बाहर आए नहीं, हम तो बिल्कुल फॉलो कर रहे थे 2018 तक, तो एक नया एग्रीमेंट क्यों, राइट। जो एग्रीमेंट ऑलरेडी है उसी पे ही काम होना चाहिए, और नया एग्रीमेंट तो हम कोई साइन नहीं करेंगे। और 2018 से लेकर अभी तक जो हमको नुकसान हुआ, जितना भी नुकसान हुआ ऑयल एक्सपोर्ट का, तो उन्होंने क्या किया, एक अमाउंट कोट किया, दैट इज कि यूएस हमको क्या करेगा, सैंक्शन करेगा इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द ह्यूज लॉस, और कितना होगा, दैट इज 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर। आई बात समझ में। इस स्लाइड में अपन ने समझा कि बाइडेन ने क्या बोला कि मैं यूएस इज रेडी टू अगेन रीजॉइन दिस पर्टिकुलर डील, बट कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, बट ईरान ने उस चीज के लिए मना कर दिया, और ईरान बोला कि हम पुराने एग्रीमेंट पे तैयार है, बट कहीं ना कहीं जो हमको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, जो अपन को इतना हमको इतना हैवी लॉस हुआ, मतलब 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, उससे हम सीधा 0.3 मिलियन बैरल्स पर डे पे आ गए, तो हमारे लिए कितना सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया। तो उन सब का कॉम्पनसेशन कितना मांगा इन्होंने, 1 ट्रिलियन डॉलर। क्लियर है। और लास्ट में एक चीज और आई है कि अभी इन दिस ईयर ओनली जून 2021 में वहां पे इलेक्शंस है, तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वहां की गवर्नमेंट करती है, और अभी के जो प्रेसिडेंट है रूहानी, वो कहीं ना कहीं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, नए प्रेसिडेंट आएंगे, तो नए नए जो लोग आएंगे उनका क्या टेक रहेगा। और ऐसा मानना है कि प्रेसिडेंट रूहानी है वो काफी, मतलब इन टर्म्स ऑफ देखा जाए तो कोऑपरेटिव है, मतलब ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय जो बिल्कुल मना कर दे, और तो ही इज वेरी सपोर्टिव। बट कहते हैं कि अब जो प्रेसिडेंट आएंगे उनको कहीं ना कहीं लोगों का वोट शेयर, और जो ईरान का ऑलरेडी यूएस के प्रति गुस्सा है, तो यूएस का वापस इस ईरान न्यूक्लियर डील में आना एक लॉन्ग पॉसिबिलिटी लगता है, कि मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर ये होना होता तो प्रेसिडेंट रूहानी के रहते रहते हो जाए, बट अगर इफ नहीं हो पाता और वापस से चुनाव वगैरह हो जाते, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि ये वापस से एग्रीमेंट क्या हो सके, साइन हो सके। क्लियर। आई थिंक विद दिस, और एक चीज है कि काफी इंफॉर्मेटिव था, स्लाइड्स काफी थी, डिटेल्स काफी थी, बट इसमें कंटेंट भी काफी सारा है, और इससे क्वेश्चंस भी काफी सारे बन सकते हैं। तो और मैंने आपको इंपॉर्टेंस तो इनिशियली बताई दी कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये पर्टिकुलर टॉपिक। तो आई थिंक वी गॉट अ गुड ओवरव्यू, एंड without any further ado, we'll just move to the quiz. Okay, so the first question. President Dash on Wednesday ruled out changes to Iran's nuclear accord. Accord means agreement with world powers and dismissed calls to broaden the terms of the deal and include regional countries. Which of the following has been replaced by one?
तो अभी अपन ने प्रेसिडेंट लास्ट स्लाइड में पढ़ा, तो प्रेसिडेंट वहां के हसन रूहानी। Question number 2. Iran's regional arch rival Daesh has also called for a role in any future talks on the agreement. Which of the following has been replaced by 2? So the correct answer is Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया का भी अपन ने टेक पढ़ा था, जो पड़ोसी देश है ईरान का। उन्होंने उस समय जब 2015 में डील साइन करी तो उन्होंने बोला कि हमसे एक बार कंसल्ट करना चाहिए था। और इसराइल का भी अपन ने टेक देखा कि अकॉर्डिंग टू इसराइल जो डील थी वो बहुत लीनियंट, एग्रीमेंट जो है बहुत लीनियंट है। क्वेश्चन नंबर 3. The Islamic Revolution in Iran took place in which of the following year? That is 1979. You can note this down. Huh? Question number 4. Which of the following statement is incorrect? The question is asking about the incorrect one. A. Iran's top nuclear scientist Mohsin Fakhrizadeh was killed in a US-led drone strike in Iraq in November 2020. ये तो सही है. This is right. कि मोहसिन फखरीजादा वाज द ईरान टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बट उनको यूएस ने नहीं, इसराइल ने मारा था. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड, इन जनवरी 2020 Iranian General Qasem Soleimani was killed in an alleged killed by Mossad by remote operated electronic equipment in Tehran. ये इंसिडेंट बिल्कुल सही बताया और कोसिम सुलेमानी बिल्कुल सही बताया, जो ईरान के टॉप जनरल थे, बट उनको मारा यूएस द्वारा गया था बगदाद एयर स्ट्राइक में. So this is also incorrect. So C option is both A and B are correct, and D is both A and B are incorrect. So the correct answer is option D. That is both A and B are correct. Clear? Question number 5. Under JCPOA, Iran agreed to eliminate its stockpile of medium enriched uranium, cut its stockpile of low enriched uranium by dash, and reduce by about 2/3 the number of its gas centrifuges for 13 years. This thing we had not discussed earlier, but the correct answer for this is 98%. You can note it down as well. Okay, so I think with this we got a very good overview, a brief description of this particular topic. बहुत अच्छा अपन को एक पता चल गया कि ये टॉपिक क्या है, और काफी बार अपन ने न्यूज में भी देखा है, और इवन इफ यू आर रीडिंग एडिटोरियल्स ऑन ए डेली बेसिस, तो एडिटोरियल्स में भी काफी बार ईरान न्यूक्लियर डील का जिक्र किया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस, इसका रेलेवेंस, राइट. तो आफ्टर लुकिंग एट दिस सेशन, तो अपन को एक समझ आ गया कि पूरा एक अच्छा सा एक ओवरव्यू मिल गया, ताकि अब अगर ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट में कुछ भी अगर अपडेशंस, चेंजेस कुछ भी होते, तो दिस विल गिव अस ए गुड आइडिया. और अपन पूरा एक इन द मतलब इन आवर माइंड एक फ्लो चार्ट बना चुके. अपन को समझ आ गया 2015 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, राइट. So I think we are good with this. We are good to go. And again, a quote: "You get in life what you have the courage to ask for." So with this, I conclude my session. Be positive, stay logical, and stay ahead with Vidhya, your best pal for CLAT preparations. And to get this content and more related stuff with respect to CLAT and other law entrance exam, you can visit the URL which has been mentioned in the description. That's all from my side. Thanks for watching.